السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ کی 67 نمبر کی آیت ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے چلے جاتے ہیں، بعض بات کو مانتے بعض اس کا انکار کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے آپ، بہت سی قرآن کی باتیں لوگ انکار کرتے ہیں۔ کس بنا پہ انکار کرتے ہیں؟ جھوٹی حدیث مان کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ سمجھا؟ اسی لیے اتنے بڑے بڑے فرقے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، سمجھ رہا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا۔ قرآن میں ہر مسئلے کا جواب دیا گیا ہے، یہ لوگ بخاری کی حدیث کو پکڑ کے چل رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت بالکل نہیں دے گا، اللہ نے بول دیا ہے۔ سمجھا؟ جھوٹی بات کو مان رہے نا، بخاری میں قرآن کے خلاف جو باتیں وہ جھوٹی ہے، تو جھوٹ بولنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سمجھا؟ سوچیے آپ، سورہ مومن، غافر، یہ سورہ کا نام ہے، دو نام ہے، مومن اور غافر۔ آیت نمبر 28 دیکھیے آپ، جھوٹے لوگ کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ جھوٹ بات بولتے ہیں نا، جھوٹ بات کو مانتے ہیں، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 28۔ اللہ کی بات کا انکار کرنے والے کو اللہ بول رہا ہدایت نہیں دیتا، جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوچیے آپ، جھوٹ کہاں ہے؟ جھوٹ قرآن میں نہیں ہے، جھوٹ ہے نا قرآن میں نہیں ہے، سب حدیثوں میں آپ کو جھوٹ بات ملے گی، ملاوٹ، سچ اور جھوٹ دونوں۔ سمجھا؟ تو جھوٹ بات کو مان لیں گے، اللہ کی بات کا انکار کر دیں گے، سمجھا؟ تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ مان لیں نا جھوٹ بات، نبی پہ جادو ہوا، جھوٹ بات۔ قرآن میں اللہ فرما رہے نہیں ہوا، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو ہوا۔ پورے بنی اسرائیل آیت نمبر 47 اور 48 دونوں آیت دیکھو، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو ہوا۔ اے نبی، آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے۔ سمجھا؟ بخاری کی جھوٹی حدیث مان رہے، قرآن کی بات رہے ہے نا، تو کیا ہوئے گا؟ آپ کو ہدایت ملے گی؟ بس خوش فہمی میں رہو۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اسی لیے اسی پہ قائم ہے۔ جس کے پاس جو دین ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ سمجھا؟ تو اسی لیے جھوٹ بات کو لے کے، سچ بات جھوٹ بات ملاوٹ کر کے چل رہے ہیں، تو ان لوگ کو ہدایت ہی نہیں ملی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، بریلی، دیوبندی ہے، دوسرے کو جہنمی گمراہ، اور اپنے فرقے کو، اپنی ٹولی، اپنی جماعت کو سچ۔ ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرما دیے ہدایت کب ملے گی؟ جب قرآن کی بات کو مانے۔ سورہ توبہ میں بھی بولا اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 37 انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ وہاں عربی میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا لکھا ہے، میں اردو میں بتا رہا ہوں، انکار کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ کافر کو ہدایت نہیں دیتا کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کا ذہن ایسا بنا ہے، وہ دوسرے مذہب والے، قوم والے، کرسچن ہے، ہندو ہے، پارسی ہے نا، پنجابی ہے، بولے ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ بول رہا ارے بھائی، انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا، چاہے تم ہو یا میں ہوں۔ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں نا، ایک بات، دو بات، چار بات، وہ لوگ تو ٹوٹل نہیں انکار کرتے اللہ کا۔ تم لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، مان لینے کے بعد، ہے نا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100، تم ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے تم کو۔ اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے، ایمان والوں کو بول رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ کلمہ پڑھتے، نماز ہوگا، حج کرتے، ان کو بول رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، مطلب ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والا بنا دیں گے۔
समझे आप। ये नहीं कि ईमान लाने के बाद तुम क्रिश्चियन बन जाओगे, हिंदू बन जाओगे, पारसी पंजाबी बन जाओगे, ये नहीं। तुम ईमान लाने के बाद, मानने के बाद इनकार करने वाले हो जाएंगे। पहले किताब की बात मानोगे। पहले किताब की बातें किधर है? सब जो घुसाई गई है दीन में, इस्लाम में, जो लोग मिलावट की है, हदीसों की किताब में की है। तो वही अल्लाह बोल रहा है सूरह आले इमरान आयत नंबर 100 नंबर की आयत, बहुत अहम आयत है। ईमान वाले मुशरिक भी हो जाते हैं, ईमान वाले काफिर भी हो जाते हैं, ईमान वाले मुनाफिक भी हो जाते हैं। ये मत सोचो जो कलमा पढ़ा हो काफिर नहीं है, जो कलमा पढ़ा हो मुशरिक नहीं है, जो कलमा पढ़ा हो मुनाफिक नहीं है। समझे आप। ईमान लाने के बाद अगर अल्लाह की बात का इनकार किए, कोई भी बात, एक बात दो बात, अल्लाह की कुरान की अंदर की बातें इनकार कर रहे हो ना आप, हदीस मान के, झूठी झूठी हदीस मान के कुरान का इनकार कर रहे हैं, तो आप लोगों को हिदायत मिलने वाली नहीं है। समझे आप। सूरह तौबा आयत 80 में भी है, नाफरमानों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। जो लोग अल्लाह की बात के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल करते हैं, वो नाफरमान लोग हैं, उनको हिदायत नहीं देता। इनकार करने वाले को हिदायत नहीं देता, झूठ बोलने वाले को हिदायत नहीं देता। सब बातों बता दिया। तो हिदायत आपको कब मिलेगी? जो रुजू होता है, जो अल्लाह की किताब की तरफ झुकता है, रुजू होता है, उनको अल्लाह हिदायत देता है। वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला हिदायत उसको देता है। सूरह राद आयत नंबर 27 किसको हिदायत देता है? जो अल्लाह की बात के आगे झुकता है, मानता है। अल्लाह की बात किधर है? अल्लाह की सारी बात इधर ही है। कुरान भी अल्लाह की बात है। कलाम अल्लाह बोलते हैं ना, कलाम अरबी लफ्ज़, कलाम यानी बात अल्लाह की, कलाम अल्लाह की बात। समझा। कुरान ये अल्लाह की बात। तो अल्लाह की बात को मानेंगे, सारी बात को, ऐसा नहीं कि थोड़ा माने थोड़ा रद्द किए। अल्लाह बोल रहा है सारी बात को मानना पड़ेगा। मेरा एक हुक्म भी आप रद्द इनकार नहीं कर सकते। समझे आप। इनकार किए अल्लाह का एक हुक्म तो तुम काफिर हो। समझे आप। इब्लिस ने ये इनकार किया ना, एक ही हुक्म, शिर्क नहीं किया, उसने इनकार किया अल्लाह की बात का कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। एक बात का इनकार किया तो अल्लाह क्या फरमाया उसको? तो हो गया काफिरों में से, इनकार करने वालों से। समझे आप। काफिरों में से हो गया क्या मतलब? वो क्रिश्चियन और हिंदू और पंजाबी दूसरे मजहब का नहीं हो गया। आप लोग को तो मदरसे से बात ही समझाई नहीं गई, उलट पुलट दिमाग में बिठाया गया। काफिर का मतलब दूसरे लोग, हम नहीं। हम कितना भी अल्लाह की बात इनकार करते चले जाए, हम काफिर नहीं। ऐसा ज़हन मदरसों से बना है। मैं आपको कुरान के मुताबिक सही बात बता रहा हूँ। अल्लाह की कोई भी बात का इनकार किया तो तुम काफिर। बोला ना अल्लाह, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो जाएंगे, इनकार करने वाले हो जाएंगे। समझा आप। ये मत सोचो कि इनकार करने वाले का काफिर का मतलब दूसरे मजहब में चले जाएंगे। ये नहीं कि तुम मानने के बाद काफिर हो जाएंगे, यानी इनकार करने वाले। काफिर मतलब अल्लाह की बात का इनकार न करने वाले को काफिर बोलते हैं। चाहे मैं इनकार करूं कोई भी बात अल्लाह की, या अमल करूं कुफ्र, अल्लाह के खिलाफ अमल कुफ्र, अल्लाह की बात के खिलाफ दूसरी झूठी बात मानना कुफ्र, अल्लाह की बात का इनकार काफिर। मैं बन जाऊं या आप बन जाए, कोई भी बात इनकार करे तो हम काफिर हो जाते हैं। समझिए आप। सोचिए आप, हिदायत अगर आपको चाहिए तो हिदायत इधर है। हिदायत चाहिए तो इसकी सब बात मानो। ये हिदायत की किताब है। अल्लाह बोले ना हिदायत, गाइडेंस, सूरह जासिया आयत 11। हिदायत अल्लाह उसको देता है जो अल्लाह की बात मानता है। सब बात, पूरी बात मानने का ऑर्डर है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में ईमान वालों पूरे दाखिल हो। समझे आप। पूरे दाखिल होंगे, अल्लाह की बातों पे चलेंगे तो हिदायत मिलेगी। खाली दुआ करते रहो अल्लाह हिदायत दे। हिदायत की किताब तो आ गई, तो आप हिदायत की किताब से नहीं ले रहे हिदायत, तो कहाँ मिलेगी? आप ले रहे बुखारी से, कोई फजाइल अमल से हिदायत ले रहा है, उसका दर्श रहा है, उसका बयान सुन रहा है, मिलावटी, सच झूठ। समझे आप। बुखारी का कोई दर्द दे रहा है, बुखारी को पे ईमान रखा है, उसकी आधी बात सच्ची, आधी झूठी बात, मिलावटी किताब, सब गुमराही। जितनी किताबें हैं ना दुनिया में, सब गुमराही फैला, सब अकीदे खराब, मिलावट, हर किताब सिवाय कुरान की। अल्लाह ने बोला है ना, इस कुरान की पैरवी करो, इत्तिबा करो इस कुरान की। तो कुरान की इत्तिबा करेंगे तो हिदायत मिलेगी। भाई हिदायत की किताब से हिदायत लेंगे तो हिदायत मिलेगी ना। समझे आप। सोचिए आप, ये सब अहम बातें हैं जो अल्लाह ताला कुरान में बता दिया, ईमान वालों को एकदम रहनुमाई कर दिया। समझे आप। झूठी बात मान के चल रहे, नबी बख्शवा लेंगे, ज़हन बनाया था।
नबी ना होते तो दुनिया नहीं बनती, ऐसा जहन बना है लोगों का, उलट पुलट जहन। नबी ना होती तो दुनिया ना होती है, नबी को पैदा करना नहीं होता तो अल्लाह दुनिया नहीं बनाता। है सब झूठी गड़ी हुई बातें, समझे आप? सोचिए आप, सब गड़ी हुई बातें, समझे आप? पैगंबर की मोहब्बत में गुलू कर लिए, मोहब्बत में गुमराह हो गए। ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह के खिलाफ सब बातें, मोहब्बत में अल्लाह की बात उड़ाते चले जा रहे हैं। नबी की मोहब्बत में कोई अली की मोहब्बत इतनी कर रहा है कि अल्लाह की बात को उड़ाते चले जा रहा है, रद्द करते चला रहा है। अली की मोहब्बत में ही गुमराह होते लोग, समझा? मोहब्बत कितनी करने बोला अल्लाह ने? जितना अल्लाह ने बोला है, जिस मकाम पे पैगंबर को रखा है, साहबा को, वो मकाम पे आप भी रखना, उतना उससे हद से ज्यादा बढ़ा दिए तो गए, समझा? अब ईसा अलैहिस्सलाम को भी क्रिश्चियन लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, हम और आपसे ज्यादा मोहब्बत वो लोग करते हैं, मालूम? ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिश्चियन लोग मोहब्बत भी करते ना, ईसा की, जीसस हेल्प मी, जीसस मदद करो, ईसा अलैहिस्सलाम मदद करो, है ना? तो खुदा का बेटा बोल रहा है, कोई बोल रहा है खुदा ही है, उनमें भी फिरके कई। तो मोहब्बत में बोल रहे हैं ना वो लोग, ये दुश्मनी में बोल रहे हैं। मोहब्बत इतनी कर दी है कि अल्लाह बोला है कि पैगंबर है ईसा, वो लोग बोल रहे नहीं अल्लाह के बेटे ही है, या बोल रहे हैं अल्लाह ही है ईसा, समझ आया? तो मोहब्बत में गुमराह हो गए। इसी तरीके से उम्मत मोहम्मदिया भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ा चढ़ा के झूठ बात बोल रहे हैं, तो झूठ बकते चले जा रहे हैं नबी की शान में। तो अल्लाह बोल रहा है झूठे लोग को अल्लाह हिदायत नहीं देता, समझे आप? झूठ बोलने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं देता। देख लो आप खोल के कुरान, सूरह मोमिन आयत नंबर 28, झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। तो आप झूठ बातें बोल रहे नबी के शान में, नबी न होते तो दुनिया नहीं होती, नबी बख्शवा लेंगे, समझा? बुखारी की झूठी हदीस से आपका देन बना है, बख्शवा लेंगे। अगर कुरान से लेते हिदायत कि नबी बख्शवा सकते हैं कि नहीं, तो अल्लाह कुरान में जवाब दे दिया है ना कि नबी जहन्नुमियों को, दोज़खियों को नहीं बचा सकते, बता दिया ना। सूरह ज़ुमर आयत 19, अफमन हक़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार। ए नबी भला जिस शख्स का फैसला हो गया, जो लोग दोज़ख में हैं, क्या आप उसको छुड़ा सकते, बचा सकते, मुखलसी दे सकते? सोचो आप, बता दिया कि नहीं बचा सकते नबी। सूरह जिन भी देख लो आप, आयत 21, कह दो कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, ए नबी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नफ़े और नुकसान का कोई अख्तियार नहीं रखता, मेरे को अख्तियार ही नहीं, न मैं नफा पहुँचा सकता हूँ तुम्हारे हक में, ना नुकसान पहुँचा सकता हूँ तुम्हारे हक में, समझे आप? बता दिया ना। सूरह तहरीम में इसीलिए बताया है कि नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है मेरे नेक बंदे, उनकी बीवियों को नहीं बचा सकते, उनके बीवियों के कुछ काम नहीं आ सकते, इसीलिए बता दिया है। तो पैगंबर लोग किसी को भी नहीं बचा सकते, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप को बचा सकते, न लूत अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम बीवी को बचा सकते, न नूह अलैहिस्सलाम बेटे को बचा सकते। पैगंबर अपने बीवी बाप बेटे को नहीं बचा सकते। तो सोच लो आप, इसीलिए अल्लाह के नबी भी बताए कि मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कुछ अख्तियार नहीं सकता, जहन्नुम को नहीं बचा सकता। वो झूठी हदीस गढ़ी हुई, जहन्नुम में से निकाल रहे, सजदे में घुस जा रहे सब। इसीलिए तो आपको हदीस गढ़ कर दिया है, ताकि आप ईमान लाने के बाद अल्लाह की बात की इनकार करने वाले बन जाओ। यही हुआ है ना, इसीलिए तो आप इनकार कर रहे कुरान की बात का और मान रहे हदीस, झूठी हदीस गढ़ी हुई। सोचिए आप, हिदायत मिलने वाली नहीं, आप अपने आप को सोच रहे कि मैं हिदायत पे हूँ, सही है, मेरा गिरोह, मेरी जमात सही है, सामने वाला गिरोह गुमराह हो, वो गिरोह दूसरे को गुमराह बोल रहा है, जहन्नुमी ये गिरोह दूसरे को, अहले हदीस बरेली को, बरेली देवबंदी, देवबंदी अहले हदीस बरेली को, सब उलट पुलट खिचड़ी, सब मिलावट। क्यों? सबके पास डुप्लीकेट किताब है ना। कुरान तो है लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए, असल बात मसला बुखारी से हल करते हैं लोग, कुरान से नहीं, समझे आप? अल्लाह ताला बोल रहा है कुरान से अपने अख्तिलाफात दूर करो। हमने ये कुरान किताब इसलिए नादिल की, ये किताब इसलिए नादिल की कि लोगों के अख्तिलाफात का फैसला कर दो। किताब नादिल करने का मकसद बता रहे कि लोगों में जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, उसका फैसला कर दो कुरान से। तो इसका मतलब हर झगड़ा और हर अकीदे, हर मसले का जवाब है, जब भी अल्लाह बोल रहा है ना, इसका फैसला कर दो। सूरह नहल आयत 64 खोल के देखो, हमने किताब इसलिए नाज़िल की कि लोगों में जो अख्तिलाफ़ को झगड़ा, आप उसका फैसला करो। तो इसके अंदर हर अकीदे, हर मसले का जवाब है। इसीलिए अल्लाह बोल रहा है इस कुरान से दूर करो लोगों में जो अख्तिलाफ़, तब एक होंगे ना। अगर एक होना है तो कुरान पे सबको आना पड़ेगा, सारे फिरके, सारे इंसानों को,
कुरान से मसले हल करेंगे तो एक होने का चांस है। अगर कुरान से नहीं तो फिर हमेशा भटकते रहो और ठोकरे खाते रहो, अंधेरों में भटक रहे। कुरान रोशनी है, समझे आप, अल्लाह फरमाए रोशनी आ गई कुरान, समझे आप। तो रोशनी में चलेंगे, कुरान की रोशनी में, तो हिदायत पाएंगे, वरना हिदायत नहीं पाएंगे। कुरान तर्जुमे से पढ़िए और जानकारी लीजिए क्या सही क्या गलत। ईमान है, साथ में शिर्क भी है, ईमान है साथ में कुफ्र भी है। ईमान रखते हुए मुशरिक काफिर मुनाफिक सब है, ईमान होते हुए ईमान के साथ कुफ्र, ईमान के साथ शिर्क, ईमान के साथ निफाक। समझे आप, तर्जुमे से पढ़िए तब जानकारी होगी। अपनी जबान में पढ़िए, जो जबान आपको आती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, सब, कन्नड़, मलयालम, अपनी जबान में कुरान पढ़े तो समझ में आएगा, आसान है, पढ़िए आप। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।